Praise the Lord, church. Praise the Lord, Kalesia. I want to thank the Lord for He has given me this opportunity to bring the word of the Lord this morning. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उसने मुझे यह मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आज आपके बीच में ला सकूं। I want to thank you all for your love and your support. और मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके प्रेम के लिए, आपके साथ के लिए। Why don't we bow our heads in prayer as we go before in word? क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। Father Lord, we want to thank you this morning for your presence in our midst. धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। Father, we know that your word is living and powerful. और प्रभु हम जानते हैं कि आपका वचन जो है वह जीवित और सामर्थी है। Father, your word brings us life. प्रभु आपका जीवन हमारे लिए जीवन को आपका वचन हमारे लिए जीवन को लेकर आता है। Father, we pray that make our hearts a receptive soil this morning. और प्रभु आज के दिन हमारे हृदय को प्रभु वह उपजाऊ भूमि बना। Take away all the distractions of our mind, Lord. प्रभु हमारे मन के हर एक डिस्ट्रैक्शन को जो भटकाते हैं हमें उससे दूर कर प्रभु। Silence the noise in our minds, O God, हमारे मनों में जो शोर है उसको शांत कर खुदा। so we can hear your voice through your word प्रभु ताकि हम तेरी आवाज को सुन सके तेरे वचन के द्वारा and build your church through your word, O God. और आपकी कलीसिया को स्थापित कर सके आपके वचन के द्वारा। In Jesus Christ's most holy name we pray. Amen. यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। Good morning, church. मॉर्निंग कलीसिया। It's an honor to be in the midst of you and to share the word of the Lord this morning. और ये एक बहुत बड़ा आदर की बात है मेरे लिए कि मैं आपके बीच में हूँ और परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट रहा हूँ। So are you prepared with the word and your notes? और क्या आप अपने वचन और अपने नोट्स के साथ तैयार हैं आज की So if सुबह? you don't have your physical Bibles, we'll provide for you because we believe in reading from the word of the Lord. और अगर आपके पास फिजिकल बाइबल नहीं है हम आपको फिजिकल बाइबल दे सकते हैं। We'll also provide you papers and pens so you can note down the scriptures, you can note down what the Lord has for you. और हम आपको पेपर और पेन भी दे सकते हैं अगर आपको लिखना है कि क्या परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है आज। So this morning we are continuing in our series from the book of James. और आज की सुबह हम अपनी श्रृंखला में आगे सुनने जा रहे हैं जो याकूब की पुस्तक से हम देख रहे हैं। And God has been bringing wonderful revelation from the book of James. और परमेश्वर याकूब की इस किताब से हमारे लिए अद्भुत प्रकाशन को लेकर आ रहा है। And these revelations God is giving us to equip us so we can practically live out our Christian life. और यह जितने भी प्रकाशन है परमेश्वर हमें दे रहा है ताकि हम एक वास्तविक रूप से अपने मसीह जीवन को जी सकें। So in the time of the book of James, when James was writing this, और जब याकूब के समय में याकूब इस पुस्तक को लिख रहा था, the kingdom of God that Jesus Christ preached was expanding beyond physical territories, and it's doing still today. और उस समय में जो परमेश्वर का राज्य था वह फैल रहा था शारीरिक जो सीमाएं होती हैं, भूमि की जो सीमाएं होती हैं उनमें, और आज भी वह फैलता जा रहा है। A good news was spreading that there is a God who loves them, there is a God who cares for them, and there is a God who can deliver them from their sin and shame. और एक जो अच्छी खबर थी वह फैल रही थी सब जगह कि वहाँ पर एक परमेश्वर है जो प्रेम करता है, वहाँ पर एक परमेश्वर है जो बचाता है, वहाँ पर एक परमेश्वर है जो पाप से मुक्ति और माफी देता है। They came to understand and to know that there is a God who has the power to save them from that kingdom of darkness. और वहाँ पर लोग थे जो वह समझ को आ रहे थे, इस बात को समझ पा रहे थे कि वहाँ पर परमेश्वर है जो अंधकार के राज्य से छुटकारा देता है। And the name of that God is Lord Jesus Christ. और उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। They understood now there is a hope for them, and now no longer they have to cry in that pain and in that shame and in that sin. और उन्होंने इस बात को समझा कि उनके लिए एक आशा है और अब उन्हें रोने की जरूरत नहीं है उस शर्म में, उस पाप में जिसमें वो थे। So people ran to this God and accepted him as his savior and received the life that he brings. और फिर जो लोग थे वह भागकर इस परमेश्वर के पास गए, अपने पापों को माना और उस ज्योति को अपने जीवन में अपनाया। So you see the kingdom of God was expanding and many people from different walks of life were coming into the kingdom of God. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे परमेश्वर का राज्य है वह बढ़ रहा था और बहुत से लोग अलग अलग जगहों से परमेश्वर के राज्य में जुड़ रहे थे। And everyone was welcome in this kingdom. There was no limitation. But if you just believe in the name of Jesus, you can come in this kingdom and receive life.
और हर एक व्यक्ति इस राज्य में उसका स्वागत था और वहाँ पर कोई भी सीमाएं नहीं थी, कुछ भी बांधा नहीं गया था। हर एक व्यक्ति आ रहा था और उसका स्वागत किया जा रहा था इस And it नए is जीवन so में। beautiful to hear it, and that is a God who is still on the throne and works. और यह जितना सुंदर और खूबसूरत है सुनने के लिए, आज भी वही परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान है। So that is our God and that is his kingdom. और ये वह हमारा परमेश्वर है और ऐसा उसका राज्य है। But every kingdom that exists have a culture. और परंतु हर एक राज्य जो है उसकी एक संस्कृति होती है। So the kingdom of God has a culture and kingdom of man has a culture. तो जो परमेश्वर का राज्य है उसकी एक अलग संस्कृति है और जो मनुष्य के राज्य होते हैं उनकी एक अलग संस्कृति होती है। And the culture that the kingdom brings, it influences and impacts the citizens of that kingdom. और जो संस्कृति परमेश्वर का राज्य लेकर आता है वह प्रभाव डालती है और उत्साहित करती है उन लोगों को जो उस जगह पर उस राज्य में होते हैं। So the culture affects the way we dress, the way we behave, the way we speak. और यह जो संस्कृति होती है यह हमारे कैसे हम कपड़े पहनते हैं इस बात पर प्रभाव डालती है, कैसे हम बोलते हैं इस बात को प्रभाव डालती है। And most importantly, the culture of a kingdom affects the way we think. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस राज्य का जो संस्कृति होती है वह हमारी मानसिकता को प्रेरणा देती है। So if you go to the south, you go to the Kerala, people have different attire, they speak differently, they think differently. और इसलिए अगर आप केरला की साइड जाएं, साउथ में जाएं, वहाँ पर लोगों के वेशभूषा अलग है, वह अलग कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, सोचते हैं। So, and if you come to Uttarakhand, the people behave differently, they dress differently and they speak differently. और इसीलिए अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर लोग अलग रूप से ड्रेस करते हैं, अलग रूप से कपड़े पहनते हैं, अलग रूप से बोलते हैं। So the culture affects the way a man thinks. और इसीलिए एक जो संस्कृति होती है वह एक मनुष्य की मानसिकता पर प्रभाव डालती है। So we live in a world where there is a culture of measuring man on the basis of what they possess. और हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं, एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर हम एक मनुष्य की उन्नति को जांचते हैं या नापते हैं इस बात से कि कितना उसके पास है। And then the people of the world segregate them into two categories: are they valuable or they are less valuable. और फिर उसके बाद जो संसार के लोग हैं इस बात पर, इस शिक्षा पर, इस संस्कृति पर उनको दो भागों में बांटते हैं कि क्या उनका कोई मूल्य है या उनका कोई भी मूल्य नहीं है। So we measure a man on different criteria. और इसीलिए हम एक मनुष्य को अलग अलग बात से, अलग अलग तराजू से तोलते हैं। For example, age. एक उदाहरण के लिए एज, उम्र। So if the child is elder, the grandma will give that elder child 500 rupees. और इसीलिए अगर बड़ा लड़का होता है घर का तो शायद दादी जी उसे 500 रुपए देंगी। And if the younger child, he will only get 100 rupees. और अगर छोटा है तो उसे सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। Why? Because he is elder. क्यों? क्योंकि वह बड़ा है। So that is the criteria which the man measures. और यह एक ऐसा माप है जिससे जो मनुष्य है वह मापता है। Or maybe it is beauty in college. और शायद यह सुंदरता हो कॉलेज में। If a girl has a flawless skin and a good hair and a good body, she is more valuable. अगर एक लड़की जो है बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे बाल हैं तो वह ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, उसको मूल्य माना जाता है। And if she has few acne, she is considered less और valuable. अगर उसके चेहरे पे कुछ दाने हैं तो उसे कम बहुमूल्य माना जाता है। And it goes on with gender, profession, IQ and so many different things. और फिर इनकी अगर हम लिस्ट देखिए तो बहुत बड़ी है, जैसे किस जेंडर से आप हैं, आपका IQ क्या है, आप किस जगह काम करते हैं। Even with sports team. Sports team. और यह स्पोर्ट्स के साथ भी ऐसा ही है, खेल की जो टीम होती हैं। So if you support Chennai Super Kings, you are above. और अगर आप चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत ऊंचे माने But if you जाएंगे। are supporting RCB, then you are not that valuable. और अगर आप RCB को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका कोई आदर नहीं होगा। So you see, the people have different measure to measure a man. तो आप देखिए कि लोगों के पास अलग अलग तराजू हैं लोगों को तोलने के लिए। A man's value is defined by what they bring on the table for you. और एक मनुष्य की जो मूल्यता है वह इस बात से देखी जाती है कि वह आपके लिए उस मेज पर क्या लेकर आ रहा है। So if you had the shakalaka boom boom pencil in school, you were the star.
और अगर आपके पास स्कूल में शाकला का बूम बूम की पेंसिल थी तो आप स्टार थे। Or if you had the Barbie doll, that premium pencil box with sharpener in it, you were the star. और या फिर आपके पास बारबी डॉल वाला शार्पनर वाला बॉक्स था तो आप स्टार थे स्कूल में। That's how we were measured in the school days. और ऐसे हमारी तुलना की जाती थी स्कूल के दिनों में। So we are preferred over others because of what we possess, and that isn't fair. और इसीलिए हमारी जो मूल्यता है वह इस बात पर होती है कि हम क्या अपने पास रखते हैं, जो सही बात नहीं है। So we meet these unfair situations and people along the walks of life, isn't it? और फिर हम अपने जीवन में आगे चलकर इन सब बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हाँ कि ना। And when we meet these people, this situation, what will we say? This is partiality. और फिर जब हम ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यह भेदभाव है। We don't like partiality at all. और हमें भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं। And this is the same issue that James is going to address, that we are going to look in our Bibles today. और यह वही इसी बात को आज याकूब हमारे बीच में बताने वाला है, बोलने वाला है बाइबल में, और आज हम उसको सुनेंगे। James saw that this was happening in his time and in the body of Christ. और याकूब ने देखा कि यह सब कुछ उसके समय में हो रहा था, परमेश्वर की दया में भी यह भेदभाव हो रहा था। He saw that people were preferred and favored because of what they possess. और उसने देखा कि लोग जो हैं इस बात से उनकी मूल्यता रखी जा रही है कि क्या उनके पास है। And it still happens in today's time. और यह आज भी होता है। So we read from James chapter 2 verse 1, and it says, "My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of God, the Lord of glory, with partiality." वह इस बात को कहता है याकूब 2 के 1 में, हे मेरे भाइयों, हमारे मसीह यीशु प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पश्चाताप के साथ ना हो। And it says, if I paraphrase it, that James is saying, as the disciples of Jesus Christ, don't practice your faith partly. और अगर मैं इसको अपनी भाषा में कहूँ तो यहाँ पे याकूब हमसे ये कहना चाहता है कि जो यीशु मसीह के चेले हैं, अपने विश्वास को ऐसे भेदभाव के साथ ना बांटो। So what does partiality mean? तो यह भेदभाव होता क्या है? Partiality means in a part and not whole or not totally. भेदभाव का मतलब होता है कि एक बड़ी चीज का छोटा सा जो हिस्सा होता है। So when we are showing partiality, we are only choosing what we like and obey what we like. और जब हम इसलिए भेदभाव करते हैं तो हम चुनाव करते हैं कि हम सिर्फ उसी बात को चुनें जो हमें पसंद है, जो हमारे लिए सही है। In other translations, you will see that do not practice your faith with favoritism. और अगर हम और कोई ट्रांसलेशन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अपने मन पसंद के लोगों के साथ ज़्यादा विश्वास ना दिखाओ। So what is favorism? It is choosing someone over others for selfish gains. और फेवरिज्म फिर क्या होता है? वह यह होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि उससे आपका फायदा हो रहा है। And somewhere we all have done partiality if we have been honest in the presence of Christ. और कहीं ना कहीं हम सब ने इस भेदभाव को किया है। We have shown favoritism. हमने इस मनपसंद होने का अधिकार किसी को दिया है। So how does a disciple of Christ shows partiality according to James? और याकूब के हिसाब से मसीह के जो चेले हैं वह कैसे इस भेदभाव को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। So he gives a beautiful illustration from verse 2 to verse 4. Let us look into our scriptures. आए हम अपने वचनों में देखें, उसका दूसरे अध्याय के 2 से 4 आयत में उसने बहुत ही खूबसूरत रूप से वहाँ बताया है। So we will read in Hindi to save time. और हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले को मुंह देख कर कहो तू वहीं अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँवों के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया? So the James is telling that if a rich man comes into your assembly,
तो याकूब इस बात को बता रहा है कि अगर एक अमीर व्यक्ति तेरी सभा में आए, and he's comparing that when a poor man's come to your assembly, और वह उसकी तुलना कर रहा है कि अगर उसी समय पर एक कंगाल व्यक्ति तेरी सभा में आए, what is a believer's attitude? तो क्या एक विश्वासी का एटीट्यूड, क्या एक विश्वासी का जवाब होना चाहिए उसके लिए। So in Sunday morning we are ready to set up. It's going to be 10 a.m. and people are coming in the church. तो एक रविवार की सुबह हम तैयार हैं, हमने अपना सेटअप कर लिया है, लोग आने वाले हैं 10 बजे कलीसिया में, And the welcome team is ready to welcome the people. और जो वेलकम टीम है वो तैयार है, खड़ी है लोगों का स्वागत करने के लिए। And they see a man walking in nice Puma shirt and nice John Player pants and coming. और वह देखते हैं एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छी पूमा की शर्ट और बहुत महंगी पैंट पहने हुए आ रहा है कलीसिया में। And they are like, oh, thank you, please welcome, hallelujah, praise the Lord, please come to our church, please, please. और please. फिर वह इस प्रकार से कि धन्यवाद, आप आए, बैठे बैठे। And then the congregation is worshiping and they look around, they're like, there is somebody who's rich among us. और फिर जब कलीसिया जब आराधना कर रही है तो वो आसपास देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे हमारे बीच में कोई अमीर व्यक्ति है। Then comes a second person who is not wearing that good dress, maybe they didn't take even a bath and they are coming to church. और फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा है जिसने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, शायद वो नहा कर भी नहीं आया सुबह, और फिर वह कलीसिया में आता है। And that person come and sat in front. और वो व्यक्ति आता है और सबसे आगे बैठ जाता है। And now a second person comes who is rich and very well dressed, and they have that madame dress which is nicely going till the knees and till the ankle, and they are walking with that glory. और फिर दूसरा व्यक्ति आता है जो बहुत ही अच्छे कपड़े वस्त्र पहने आया है, जिसकी ड्रेस बहुत लंबी सी है, ऐसे झूल रही है हवा में। And that lady could not find a place to sit. और फिर उस महिला को जगह नहीं मिली बैठने की। So what does the welcome team do? They go to that person who is not that good in dress or maybe not that good looking, and they say, would you please rise up? There is no seat. Would you please come and sit back in the couch? और फिर जो वेलकम टीम है अगर उस व्यक्ति के साथ जो अच्छे वस्त्र पहन के नहीं आया था उसके पास जाकर बोले कि क्या आप खड़े होकर अपनी जगह उनको दे सकते हैं और आप पीछे आकर हमारे साथ बैठ जाएं पीछे काउच पर। And then the worship is going on. We are singing, and suddenly the pastor is turning and seeing, oh wow. और फिर वर्शिप सभा चल रही है और एकदम से आंखें खोल कर पास्टर भी देख रहे हैं और कहते हैं अरे वाह। And then he's like, let me go and meet this person after the service. और फिर वह इस प्रकार से कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से मिलने जाता हूँ अब सभा के बाद। Why? Because we will get more tithes and offerings in our church. क्यों? क्योंकि हमें फिर और दान और टाइट्स मिलेंगी हमारी कलीसिया में। And everybody's attitude towards these two sects of people change. और हर किसी का स्वभाव इन दो लोगों के प्रति बदल जाता है। And God is wondering from the top, seeing and looking at his children and wondering, are these my children? और परमेश्वर ऊपर से देखकर अपने लोगों को कहते हैं कि क्या यह मेरे ही लोग हैं, मेरे ही बच्चे हैं। And this kind of attitude is common across the body of Christ. और इस प्रकार का जो स्वभाव है वह बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही सामान्य है पूरे परमेश्वर की देह में। So James here is tackling with man's perception that has become corrupted because of wealth. और याकूब इस बात को बता रहा है कि अमीरी या पैसों के कारण जो मनुष्य का दृष्टिकोण है वह बिल्कुल खराब हो गया है। Man has starting to look upon people from the lens of wealth. और मनुष्य ने लोगों को एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया है जो नजरिया है पैसों का या उसकी अमीरी का। From the lens of material wealth. और जो एक ऐसा नजरिया है जो आपकी भौतिक चीजों के ऊपर ध्यान देता है। So if anyone is wealthy, they are considered rich in the kingdom of man. और अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो अगर कोई व्यक्ति उसके पास बहुत पैसे हैं वह मनुष्य के राज्य में बहुत अमीर माना जाता है। They are the people of value, of power, praise and high position. और वह लोग हैं जिनकी बहुत मूल्य होती है और उनके पास बहुत शक्ति होती है और उनके पास एक ऊंचा ओहदा होता है। And they think they have the rights to oppress the one who are not at that level. और वह इस बात को सोचते हैं कि उनके पास इसी के साथ साथ यह हक भी है कि वह लोग जो उनके समान नहीं है उन पर अपना हक जमाएं। Their wealth is their glory and identity. और उनकी जो अमीरी है, उनकी जो कमाई है वह उनकी महिमा और उनकी पहचान है। Many of us have been victimized by the rich people. और हम में से कई लोग ऐसे अमीर लोगों के द्वारा पीड़ित किए गए हैं। We have faced partiality done to us because the rich people were around us. और हमने देखा है कि हमारे साथ
भाव हुआ है क्योंकि ऐसे अमीर व्यक्ति हमारे आसपास थे They got preferred to get admission in the college because they have money. और उनके पास पैसे थे, इसलिए उनको कॉलेज में जाने का मौका मिल गया। They even got seats in the movie theaters because they have money. और उनको मूवी थिएटर्स में सीट भी मिल गई क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे। They got admission in the hospitals because they have more money. और उनको हॉस्पिटल्स में एडमिशन पहले मिल गया क्योंकि उनके पास पैसे थे। And that was very evident in the time of COVID. और यह बहुत ज्यादा देखा गया कोविड के समय में। If you have more money, you can get the oxygen cylinder. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आपको वह ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। Man's value of life was measured on the basis of the money that you carry. और जो मनुष्य के जीवन की एक तुलना की जा रही थी कि कितना पैसा उसके पास है। Many people died in COVID because they could not afford that oxygen cylinder. They could not give that higher bid of money. और कई लोग उस समय में उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वह उसको खरीद नहीं पाए, उनके पास उतने पैसे नहीं थे। And what is the world that calls this kind of service is called premium service. और इस प्रकार की जो सेवा होती है उसे प्रीमियम सेवा कहा जाता है। So wealthy people are considered glorious because of the expensive clothes they wear. और जो अमीर लोग हैं वह उनको इतना ज़्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अच्छे कपड़े पहनते हैं। Because of the luxurious cars they drive and the lifestyle that they carry, we want to be like them. और क्योंकि वह बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में जाते हैं, एक बहुत महंगा जीवन जीते हैं, हम उनके समान बनना चाहते हैं। But the verse says that my brethren do not hold faith of the Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. और परंतु वचन इस बात को कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम अपने विश्वास को इस प्रकार से न दर्शाना कि कौन ज़्यादा अमीर कौन गरीब है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। So we think that if we have money, we will have glory. तो हम इसलिए सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे पास महिमा होगी। But James reminds us that the glory belongs to one and only, and his name is Jesus Christ. और परंतु याकूब हमें इस बात को याद दिलाता है कि जितनी महिमा है वह सिर्फ यीशु मसीह की है। He is reminding us that our glory comes from Jesus Christ alone and not from material wealth. और वह हमें इस बात को बताता है कि हमारी जो महिमा है वह सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आती है, ना कि पैसों के द्वारा। He is reminding us that Jesus Christ is greater than the material wealth that you seek. और वह हमें इस बात को याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमारी उन भौतिक चीज़ों से बढ़कर है और उन पैसों से बढ़कर है। Jesus Christ is the Lord and the wealth is not the Lord. और यीशु मसीह परमेश्वर है, वह पैसे वह अमीरी मेरे परमेश्वर नहीं। Because the world has corrupted our perception that if we have wealth, then we will have more glory. No, if we have Jesus, we have more glory. और क्योंकि जो संसार है उसने हमारे मनों में इस बात को भर दिया है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमारे पास वह महिमा होगी, परंतु नहीं, अगर हमारे पास यीशु होगा तो हमारे पास वह महिमा होगी। So man measures people on the basis of material wealth. तो जो मनुष्य है वह दूसरे मनुष्य की तुलना करता है उन पैसों से जो उसके पास होते हैं। And there is lot of distinction and partiality between people in this world because of it. और इसी वजह से संसार में बहुत से भेदभाव हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकार के लोग हैं इन चीज़ों की वजह से। But James has something very important to say upon this kind of distinction. और परंतु याकूब के पास बहुत ही एक ज़रूरी बात है इस प्रकार के भेदभाव को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। So we read in James chapter 1 from verse 9 to 11 and we'll read in Hindi for the sake of time. और हम याकूब 1 उसका 9 से 11 पढ़ने वाले हैं। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। So the James is telling, let the lowly brother glory in his exaltation and the rich in his humiliation. तो जो याकूब है वह इस बात को बता रहा है कि दीन अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर। Why is he saying this verse? Why is he speaking such thing?
और क्यों वह इस आयत को कहता है, क्यों वह इस प्रकार से इसे हमारे बीच में लेकर आ रहा है? Because all have been made equal in the kingdom of God. क्योंकि सब एक समानता में बनाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में। Rich and poor are same in the kingdom of God. अमीर और गरीब जो है वह एक समान है परमेश्वर के राज्य में। Christ has brought everyone on an equal level and on same page. और मसीह ने हर किसी को एक समानता में लेकर आया है अपने राज्य में। And in kingdom of God there is no class. और परमेश्वर के राज्य में वहाँ पर कोई क्लास, वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं है। The kingdom of God is class free. और जो परमेश्वर का राज्य है वह इस जाति से हटकर है। No rich, no poor. कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, No upper, middle or lower class. कोई ऊंची जात, बीच की जात या नीचे की जात No नहीं, caste, no religion. कोई भी जात पात, कोई भी धर्म नहीं, But only a relationship. परंतु सिर्फ एक रिश्ता। The kingdom of God just has a relationship. परमेश्वर का राज्य सिर्फ एक रिश्ता पर चलता है। And that's what we are called, the children of God. और इसीलिए हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते So हैं। when we go to the kingdom of God, we all will be the children of God. No distinction and no तो partiality. जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। And there's a beautiful truth that we see from the book of Galatians chapter 3 verse 26 to 28. और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सत्य है जो गलातियों की पुस्तक उसका 3:26 से 28 में लिखा गया है। And we'll read in Hindi. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Amen. The Amen. word of Lord says that we all are one in Jesus Christ. परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हम सब एक हैं मसीह यीशु में। There is no partiality, there is no distinction in the kingdom of God for you. वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पर कोई अलग करने वाली बात नहीं है मसीह के राज्य में आपके लिए। When we go out into the world, they might make partiality or do distinction on the basis of how we appear or what we possess. और जब हम संसार में शायद जाए तो वो हमारे साथ भेदभाव कर सकते हैं कि कैसे हम दिखते हैं, क्या चीज़ें हमारे पास है। But God in His kingdom does not do so. परंतु परमेश्वर अपने राज्य में ऐसा नहीं करेगा। So when I was working in the radiology department this previous week, और जब मैं रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा था अपने पिछले सप्ताह में, and I was sitting in the ultrasound room and we were doing the procedures. और हम अल्ट्रासाउंड के कमरे में बैठे थे और हम उन सारे कार्यों को कर रहे थे। There came a couple who were very poor. और वहाँ पर एक जोड़ा आया जो बहुत गरीब थे। And the man was really very sick. He was on wheelchair and there has to be an attendant to help him up and to put him on the table for the procedure. तो जो पुरुष था उसमें से वह बहुत ज़्यादा बीमार था, वह इतना बीमार था कि वह व्हील चेयर पर लेकर आए थे और उसको कोई ना कोई चाहिए था उसे उठाकर उस टेबल पे रखने के लिए भी। And the attendant who came with that couple went for some work and they were alone. और तो जो व्यक्ति उनके साथ आया था उनको उनकी मदद करने के लिए वो कुछ कार्य से बाहर गया और वह दोनों वहाँ पर अकेले खड़े हुए So थे। when the ultrasound was done, that lady said to me that would you please come and help me. तो जब अल्ट्रासाउंड हो गया तो उस महिला ने मुझसे कहा कि क्या आप आके मेरी मदद करना करेंगे। And for a moment I was in the flesh and I was like, I'm a doctor, why should I come and pick you up? It's not my job. और एक क्षण के लिए मैं अपने शरीर में वहाँ पर था, तो मैंने अपने आप से सोचा कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं ये कार्य क्यों करूँ। I'm here and you are here, why should I come and help you? कि मैं यहाँ हूँ और तुम यहाँ हो, मैं क्यों आकर तुम्हारी मदद करूँ। And that exact moment Holy Spirit convicted me in my heart. और वही उसी क्षण में पवित्र आत्मा ने मुझसे मेरे हृदय में बात करी। And he said there is no distinction in the kingdom of God between rich and poor. और उसने कहा कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है परमेश्वर के राज्य में अमीरी और गरीबी You में। say that you are my son, but you are not willing to help that woman. और तुम कहते हो कि तुम मेरे बेटे हो, परंतु तुम उस महिला की मदद के लिए तैयार नहीं। I was so broken because of that conviction that came. और मैं बहुत टूट गया उस प्रकाशन की वजह से उस समय में मेरे अंदर आया। And I went and picked up that man, put him on his wheelchair and left them outside.
और मैं फिर गया, मैंने उस पुरुष को उठाया, उन्हें व्हीलचेयर पे बिठाया और बाहर तक छोड़ कर आया। I still remember that experience. मुझे अभी भी वह अनुभव याद है अपने अंदर। Most of the time, we are also in that category और sometimes. बहुत सी समय हम भी इस ही प्रकार, इस ही रूप में होते हैं। When it comes to lift the poor and comfort them, we take our steps back. तो जब समय आता है कि हम उन गरीब व्यक्ति की मदद कर सके, उन्हें उठा सके, हम शायद एक कदम पीछे ले लेते We हैं start to measure them on what they possess. और हम उनको नापने लगते हैं उन बातों पर कि क्या वह अपने पास रखते हैं। If it would be a great wealthy couple, I would have ran, I guess, maybe to help them at the first place. अगर शायद उसी जगह पर वह कोई बहुत अमीर जोड़ा होता तो मैं भागकर उनके पास जाता। So we always say, the preacher gets, whatever the preacher is preaching, they always get it tested before the sermon. They get tested with that. और जो कुछ भी एक प्रचारक प्रचार करता है, उसके प्रचार से पहले वह उसी बात पर उसका परीक्षा की जाती है। So James is saying that he's reminding that Jesus is the Lord of glory. और याकूब इस बात को याद दिलाता है हमें कि यीशु मसीह ही उस महिमा का राजा And he's है। reminding us these riches perishes with time. और वह हमें इस बात को फिर याद दिलाता है कि यह जितनी भी पराक्रम की बातें हैं यह समय के साथ घटती जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। So he's saying that do not put your trust in these riches that will bring you glory. तो वह इस बात को कहता है कि तू अपना विश्वास इन बातों पर ना रखना जो तेरे को महिमा लेकर आती हैं, इन वस्तुओं पर ना रखना। So when man measures people on the basis of material wealth, he focuses on what is outside. तो जब मनुष्य उन बातों पर ध्यान देता है जो बाहरी रूप से होती हैं। So how do you treat your maid who is working in your home? How do you treat the security guard that is at your college? How do you treat the gardener that is at your place? How do you treat these people who are below you? तो यह सारे सवाल हमारे इधर उठते हैं कि कैसे हम उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो आंटी शायद हमारे घर पे खाना बनाती हैं, काम करती हैं, कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं उन गार्ड्स के साथ जो हमारे कॉलेज में गेट पर पहरा देते हैं, कैसे हम उन सब लोगों के साथ जो हमारी सेवा शायद कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। These things are external, but they aren't important in the sight of God. और यह सारी बाहरी चीजें हैं परंतु यह बहुत बहुमूल्य हैं परमेश्वर की नजरों में। So the James is saying, have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? और याकूब इस बात को आगे कह रहे हैं कि क्या तुमने भेदभाव ना दिखाया अपने एक दूसरे के बीच में और खुद एक न्याय बन गए हो। It says in the Message version, have you not segregated God's children among yourselves? और यहाँ मैसेज वर्जन में इस प्रकार से कहते हैं कि क्या तुमने परमेश्वर के बच्चों को आपस में बांट नहीं लिया है। This is very heartbreaking, definitely for God. और यह बहुत ही हृदय तोड़ने वाली एक बात है। What God has not done, we are doing, and that is showing partiality to the people. वह जो परमेश्वर ने स्वयं नहीं करा, हम उन सब बातों को कर रहे हैं और वह है कि लोगों के बीच में भेदभाव दिखाना। And it says that partiality is coming from evil thoughts, and we know that God is not evil. और वह इस बात को हमें बताता है कि यह भेदभाव जो है वह एक बुरे विचार से आ रहा है और हम जानते हैं कि परमेश्वर बुराई उत्पन्न नहीं करता है। With God there is impartiality because He is good. He looks everybody same. कि और परमेश्वर के साथ वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है क्योंकि वह जब भी अपने लोगों को देखता है वह कहता है कि यह बहुत अच्छे हैं। How do we know that God is impartial? और कैसे हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो है कोई भेदभाव नहीं दिखाता। We read from Deuteronomy chapter 10 and verse 17. हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 10 उसका 17वीं आयत। For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. और वह इस बात को कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। So we see that God the Father is impartial and so should his children be. और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो पिता है वह किसी का पक्ष नहीं लेता है तो उसके जो बच्चे हैं वह भी उसी कार्य को करें। Impartiality reflects the very nature of God and should also be the nature of his children. किसी का पक्ष ना लेना, भेदभाव ना करना वह परमेश्वर के चरित्र में आता है। तो जो परमेश्वर के जन हैं उनके चरित्र में भी यह बात होनी चाहिए। Whether a person is rich or whether a person is pure, God loves them and cares for them and they are equal in his sight.
अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है या कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, प्रेम करता है, और परमेश्वर की नज़र में वह दोनों ही बहुमूल्य हैं। So I don't know if you have observed in the body of Christ, but I did. So if there is a poor person and you are going to greet that person and they are giving you a hand, so what do, you shake it like this. That और person has leprosy or what? और अगर शायद आपने देखा हो ना देखा हो, मैं इस बात को देखा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति हमसे हाथ मिलाने आता है तो हम उसका हाथ ऐसे बहुत ही छोटे उससे पकड़ते हैं, आगे से पकड़ते हैं। But if it is a rich person, we shake a good hand and we are smiling and talking to them. और परंतु अगर बहुत अमीर व्यक्ति है तो हम बहुत ही अच्छे रूप से हाथ मिलाते हैं और शायद मुस्कुराकर उनसे बात कर रहे हैं। Partiality is not the nature of the God we serve. परमेश्वर का चरित्र नहीं है भेदभाव दिखाना। When we meet people from humble background, we should go and hug them in love and let them experience the love of Jesus. तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, हमें हर एक व्यक्ति को जाकर उनसे गले मिलना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना चाहिए। The kingdom of God is open for all and everybody is welcome. Who are we to stop people or judge people? और परमेश्वर का जो राज्य है वह सबके लिए खुला है। कौन होते हैं हम लोगों को रोकने वाले? The word of God might be giving us black and blue this morning, but he wants to disciple us. और परमेश्वर का वचन शायद आज की सुबह हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी बातें दिखा रहा है, परंतु वह आज की सुबह हमें सिखाना चाहता है। The word of God is not always grace and comforting. और परमेश्वर का वचन हमेशा अनुग्रहकारी और आरामदेह नहीं होता है। Sometimes it's like a consuming fire that wants to burn the chaff of wickedness inside of और us. कई बारी वह उस आग के समान होता है जो हमारे अंदर की उस भूसी को शायद जलाना चाहता है। So man measures people on the basis of material wealth. तो जो मनुष्य है वह लोगों को इस बात पर देखता है कि कितना सम्मान उनके पास है, कितनी अमीरी उनके पास है। But how does a God who is living and true measures wealth? और परंतु कैसे एक परमेश्वर जो जीवित और सच्चा है उस व्यक्ति को मापता है। The material wealth of this world is false and will perish. जो इस संसार की भौतिक चीजें हैं वह गिरेंगी और उसके बाद खत्म हो जाएंगी। But the true wealth in God will stand and it is eternal. परंतु वह जो सच्ची अमीरी है परमेश्वर में वह हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। So I would like to give you a beautiful illustration to help you understand that. तो मैं आपको एक बहुत सुंदर इलिस्ट्रेशन देना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं इस बात So को। once upon a time there was a very new housing estate that built apartments and they were open for the public to come inspect and see. तो एक बारी की बात है, एक जगह पर एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी, रहने वाले घर फ्लैट्स बन रहे थे, तो उन्होंने उस जगह को खोल कर रखा था कि लोग आएं और देखें उस जगह को। So the people came, they inspected the apartments and they commented that there is something wrong with the apartments. और फिर लोग आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कुछ गलत है इन सारे घरों के साथ। Everything seemed to be little smaller than the usual standard. और हर एक चीज जो थी वह थोड़ी छोटी लग रही थी, जो भी उस स्टैंडर्ड रहा होगा उन घरों का। And finally the company found out that the rivalry estate company came in the night and they cut off the measuring sticks by an inch. और फिर उन्होंने इस बात को जाना जब कंपनी ने देखा कि जो उनकी दुश्मन कंपनी रही होगी वह रात को आके उनके जो टेप्स होते हैं, मेजरिंग टेप्स होते हैं, उनको एक एक इंच काट कर चले गए थे। So they sabotaged the measuring sticks that the workmen used. और तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो काम करने वाले जो लोग थे उनकी जितनी भी चीज़ें जिनसे वह नाप रहे थे उनको काट कर वह चले गए। And the laborers were using that measuring sticks thinking that it is correct length. और जितने भी फिर जो कार्य करने वाले लोग थे, मजदूर थे, वह उनका इस्तेमाल करे जा रहे थे इस बात को सोचते हुए कि हाँ यह सही है। But their measuring was wrong. परंतु उनका जो नापना था वह गलत था। Are we using the right measuring stick this morning? क्या आज की सुबह हम वह नापने के लिए उस सही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? Because God's measuring stick is very different from man's measuring stick. क्योंकि जो परमेश्वर की नापने की डंडी है वह बहुत ही अलग है मनुष्य की उससे। How do we know that? कैसे हमें यह पता है? From James chapter 2 verse 5 to 7 we read in Hindi. और याकूब उसका 2 उसका 5 से 7 हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं।
हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? James is saying that has God not chosen the poor to be rich in faith and to be the heirs of the kingdom of those, and he has promised it to those who love them. और याकूब इस बात को बता रहा है कि क्या परमेश्वर ने उन लोगों को चुना नहीं, कि वह जगत के कंगालों को चुना नहीं कि वह विश्वास के धनी और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हों। That is a different measuring stick. मैं देखता हूं कि यह तो एक अलग ही रूप से परमेश्वर नाप रहा है उन लोगों को। And if somebody from the world hears this, they are saying that God is crazy. कि और अगर कोई संसार से यहाँ पर अभी बैठा हो तो वह कहेगा कि शायद परमेश्वर तो इस बात में बिल्कुल गलत है। But can I tell you something this morning? तो क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? The kingdom of God works differently from the kingdom of man. कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के राज्य से बहुत अलग रूप से Things चलता are है। opposite in the kingdom of God. जो बातें हैं वहाँ बिल्कुल ही विपरीत होती हैं परमेश्वर के राज्य में। And that's why the measuring stick of God is different from the measuring stick of man. और इसीलिए परमेश्वर की नापने की जो डंडी है वह मनुष्य की नापने से अलग है। So where a man is going behind a guy that has an iPhone because you can get a good picture, God is not impressed by that. तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं जिसके पास आईफोन है ताकि अच्छी फोटो आ सके, परमेश्वर शायद उस बात से खुश ना हो। God is not impressed by the financial status and the riches of man. और परमेश्वर कभी भी उन सब बातों से कि एक मनुष्य कितना अमीर है, इन सब बातों से खुश नहीं होता है। God is not impressed what is on the outside, but he is impressed on what is inside. परमेश्वर जो बाहरी रूप में क्या है उन बातों से प्रसन्न नहीं होता है, वह उन बातों से प्रसन्न होता है जो आपके अंदर हैं। You might have 1 crore, a big house and a good car, but that does not impress God. आपके पास शायद 1 करोड़ रुपए हो, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, परंतु परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। We might be rich in man's eyes because of our material wealth, but we might be poor in God's eyes. हम शायद मनुष्य की नज़रों में बहुत अमीर हो हमारी सारी वास्तविक चीज़ों की वजह से, परंतु हम परमेश्वर की नज़र में गरीब हों। Because for men the measure is material wealth. क्योंकि मनुष्य के लिए जो मापदंड है वह है हमारी भौतिक चीज़ें, But for God the measure is true wealth, and that is a man's faith. और परंतु परमेश्वर के लिए वह जो नापना है वह होती है सच्चे विश्वास के द्वारा। God looks at a man and he sees, does he have the true wealth? That is the faith in him. और परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है और उससे कहता है कि क्या इसके पास वह सच्ची अमीरी है जो है आपका विश्वास। We might not be doing well with finances, but if our faith is strong in Christ, we are rich. हम शायद अपने पैसों से, अपनी आर्थिक स्थिति से उतने अच्छे ना हो, परंतु अगर हमारे पास विश्वास है परमेश्वर में, हम बहुत अमीर हैं। And when God is with any man and he is rich in faith, he makes sure that he gets to the top. Why? Because God has made us head and not tail. और इसीलिए जब परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होता है जिस पर विश्वास की कमी नहीं होती है, परमेश्वर खुद उसे उस ऊंचे दर्जे पर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सर बनाया है ना कि पूंछ। And when that faith is actively working in love, you becomes the heir of God's kingdom. तो इसी वजह से जब वह विश्वास जब प्रेम में कार्य कर रहा होता है, फिर आपके We become the heirs of God's kingdom. जब वह प्रेम उस विश्वास के साथ कार्य कर रहा होता है, हम उस राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Isn't such a beautiful to celebrate that you are the heir of a kingdom that does not perish. और क्या यह बहुत खूबसूरत नहीं है कि आपको मनाने का मौका मिलता है कि आप उस राज्य के अधिकारी हैं। Today the world's man's perception has been corrupted and the kingdom of God doesn't excite them anymore. और आज मनुष्य की जो मानसिकता है वह खराब हो चुकी है और अब परमेश्वर का राज्य उन्हें उतना उत्साहित नहीं करता है।
We run after the rich people, and what happens? They lead us into the courts and oppression. और हम उन अमीर लोगों के पीछे भागते हैं और फिर क्या होता है कि वह हमें उन कचेरियों में घसीट लेते हैं. That help us all. We think that our help will come from them, that our comfort will come from them, our job opportunities will come from them. But at the end, there is only oppression when we follow that path. और हम सोचते हैं कि हमारे लिए वह अच्छा जीवन उनकी तरफ से आएगा, हमारी मदद उनकी तरफ से आएगी, हमारे लिए अच्छी अच्छी मौके जो हैं उनकी तरफ से आएंगे, परंतु आखिर में वो जो हमें जहां वो लेकर जाते हैं वह होता है पीड़ित होना या ताड़ना की ओर. So if we run after rich people, we go into courts and oppression. तो जब हम इन अमीर लोगों के पीछे चलते हैं तो हम अपने कचेरियों में घसीटे जाते हैं, पीट के जाते हैं. when we run after Jesus, it leads us to the true wealth, and you become the heir of kingdom, God's kingdom. परंतु जब हम यीशु के पीछे जाते हैं वह हमें उस सच्ची अमीरी की ओर लेकर जाता है और हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होते हैं. So that is very true, that even it happens when we are deciding to get married, we look at the bride or the groom, that how much wealth they have. और यह इतनी सच्चाई है कि जब हम किसी से शादी करने की भी सोचते हैं तो हम पहले देखते हैं कि कितने अच्छा खानदान उनका है, कैसी जगहों कैसे घरों से वो आते हैं. The first thing that we see is their material wealth and not their faith. और पहली चीज जो हम देखते हैं वह है उनकी शारीरिक अमीरी, ना कि उनका विश्वास. We want a man that is chasing money and has good wealth and he is so successful. हमें एक ऐसा पति चाहिए शायद अपने लिए जो पैसों के पीछे भाग रहा है, उसके पास बहुत अमीर हो, उसके पास अच्छा घर हो, परंतु हम उसका विश्वास नहीं देखते But हैं. we neglect the man who is running after Jesus. और हम उस व्यक्ति को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं जो यीशु के पीछे भाग रहा है. That man might be running after money, he has lot of wealth, but he will not give you that love of Christ that a man who follows Christ can give. और शायद वह पुरुष जो पैसों के पीछे भाग रहा है वह आपको बहुत से आराम और शोहरत दे सकता है, परंतु वह कभी आपको वह प्रेम नहीं दे पाएगा जो मसीह देना चाहता है. That man might not be earning that well, but he will always be there for you and make sure that you as your family grows in the Lord and be in peace with the Lord. और वह दूसरा व्यक्ति शायद उतने पैसे ना कमा रहा हो, परंतु वह इस बात का ध्यान संपूर्ण रूप से रखेगा कि आप और आपका परिवार यीशु मसीह के प्रेम को महसूस कर रहे हैं और आप उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं. Wealth cannot bring you peace, only Jesus can bring you peace. और जो पैसा है वो आपको आराम नहीं लेकर आ सकता है, परंतु सिर्फ मसीह आपके लिए आराम लेकर आ How सकता do है. you measure a man in this world today? कैसे आप एक मनुष्य की तुलना करते हैं आज के इस समय में? On material wealth or on true wealth? कि उसकी शारीरिक जो उसके पास चीजें हैं या फिर उसके पास जो आत्मिक अमीरी है उस पर. So we might have a question that is it wrong to be rich in material wealth? तो हमारे पास एक सवाल होगा कि क्या यह गलत है कि अगर हम संसारिक रूप से भी अमीर हों? God blesses people with material wealth. He increased them. God is a God of increase. परमेश्वर लोगों को आशीष करता है अमीर के साथ, क्योंकि वह एक आशीष का परमेश्वर है, बढ़ोतरी का परमेश्वर है. परमेश्वर हर जगह में बढ़ोतरी देता है. But the question is your life led by the material wealth, or is your life led by the faith in Jesus? और फिर जो सवाल है वह यह है कि क्या आपका जीवन उन पैसों पर चल रहा है जो उसने दिए हैं या फिर उस विश्वास पर चल रहा है जो उस पर है आपका? Who is your Lord? Is it your material wealth or is it Jesus? कौन आपका परमेश्वर है, यीशु या आपके पैसे? Because kingdom of God measures true wealth on the basis of person's faith. क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वह उस सच्चे धन को नापता है आपके विश्वास के ऊपर. So now we understood man's view and God's view on wealth, and we also understood that how we measure it. और अब हमने इस बात को समझ लिया है कि क्या मनुष्य का नजरिया है और क्या परमेश्वर का नजरिया है इस अमीरी के बारे में. So, but why do we still show partiality in spite of this knowledge? परंतु फिर भी हम इस बात को समझने के बाद भी क्यों हम भेदभाव करते हैं? Let's look into the scripture, James chapter 2, verse 8 to 13. आए हम वचन में देखें याकूब उसका 2 उसका 8 से 13. And we'll read in Hindi. तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पश्चाताप
पक्षपात करते हो, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक भी बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसीलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार को नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय और जयवंत होती है। Amen. So James is telling that why does the partiality still exist is because there is a royal law that has been given to the believers by a royal king, and his name is Jesus. और याकूब हमें इस बात को बता रहा है कि ये पक्षपात भेदभाव अभी भी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक नियम, एक व्यवस्था दी गई है, और वह व्यवस्था दी गई है हमारे यीशु मसीह के द्वारा। And that royal law is you shall love your neighbor as yourself. और वह व्यवस्था यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। So we show partiality or we show this favoritism is because we are breaking that royal law. और हम यह पक्षपात करते हैं क्योंकि हमने उस व्यवस्था को तोड़ा है। And if we show partiality is considered as sin. और जब हम यह पक्षपात करते हैं हम पाप ही कर रहे होते हैं। So it says that you shall love what? Your neighbor as yourself. तो वह इस बात को कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। So neighbor is someone that is outside of your inner circle. और जो यह पड़ोसी यहाँ पर है, इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे समूह से हटकर हो, तेरे परिवार से थोड़ा अलग हो। It is very easy to love people who are in our inner circle. और उन लोगों को प्रेम करना बहुत आसान होता है जो हमारे समूह में होते हैं। They are from the same culture, they might be from your same place, they might speak your same language. और वह शायद आपकी ही संस्कृति से आते हैं, वह आपकी ही जगह से, आपके स्थान से आते हैं, वह आप और वह एक ही भाषा बोलते होंगे। They might wear the dress as you wear, or they might carry themselves as you do. और शायद वह उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं जो आप पहनते हैं, और वह शायद उन बातों को करते हैं जिन बातों को आप मानते हैं। And it is very easy to get along with these people, to talk to them. और यह बहुत आसान होता है इन लोगों के साथ जुड़ना, इनके साथ बातचीत करना। But neighbor is someone who is outside of this inner circle of yours. परंतु जो पड़ोसी है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके इस समूह से थोड़ा अलग हो। They might not be as privileged as you. शायद वह आपके जितने सौभागी ना हो। They might not speak the English as you do. और वह शायद इंग्लिश वैसे नहीं बोलते हैं जैसे आप बोलते हैं। They might not even wear the dress as you do. और वह शायद उन कपड़ों को भी नहीं पहनते हैं जैसे आप पहनते हैं। But they are your neighbors. परंतु वह आपके पड़ोसी हैं। Those maids are your neighbors. वह लोग आपके पड़ोसी हैं। Those security guards are your neighbors. वह जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वह आपके पड़ोसी The हैं। kids of your maids are your neighbors. वह आपकी जो काम करने वाली आंटी, उनके बच्चे आपके पड़ोसी हैं। Every person who is not like you is your neighbor. और हर एक व्यक्ति जो आपके समान नहीं है And वह when आपका that पड़ोसी neighbor है। comes to the church, how do you relate to them? और जब वह फिर जो पड़ोसी है वह कलीसिया में आता है, कैसे आप उनसे मेल जोल रखते Because हैं? the neighbors around you, they need your love, care and attention. क्योंकि जो आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास लोग हैं, वह आपका प्रेम, आपका ध्यान, They need that love and care of Jesus from you to them. तो वह उनको जरूरत है उस प्रेम की और उस प्यार की आपके द्वारा जो मसीह उन्हें दिखाना चाहता है। So this morning, what is the true wealth? Are you rich in faith or are you poor in faith? तो आज की सुबह क्या वह सच्ची अमीरी है? क्या आप विश्वास में अमीर हैं या फिर आप विश्वास में गरीब हैं? Because poor in faith will measure people based on material wealth. क्योंकि जो विश्वास में गरीब हो वह लोगों को उनके पैसों के ऊपर उनकी तुलना करेगा। The rich in faith will measure people based on true wealth, and that is their faith in Christ. और जो विश्वास में अमीर लोग होते हैं वह उन लोगों को देखेंगे उस नज़रिए से जो परमेश्वर के नज़रिए है। The poor in faith will show partiality and favoritism.
तो जो विश्वास में गरीब होंगे वह इस भेदभाव को, पक्षपात को दिखाएंगे। And the rich in faith will show love of God to others. और परंतु जो विश्वास में अमीर होंगे वह परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएंगे एक दूसरे को। The poor in faith will break and partially obey the royal law that gives. और जो विश्वास में गरीब होंगे वह तोड़ेंगे और सिर्फ कुछ कुछ बातें मानेंगे उस व्यवस्था की जो परमेश्वर ने दी है। But the rich in faith will obey the royal law and love. परंतु जो विश्वास में अमीर हैं वह उस बात को मानेंगे, उस प्रेम को मानेंगे। The poor in faith will carry judgment and judge people on the basis of external appearance. और जो विश्वास में गरीब लोग हैं वह लोगों का न्याय करेंगे, वह उनका न्याय करेंगे उन बातों पर कि कैसे वह दिखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। But the rich in faith will carry mercy. परंतु जो विश्वास में अमीर होंगे वह अनुग्रह, करुणा को लेकर चलेंगे अपने अंदर। We will give people what they don't deserve. हम लोगों को वह चीजें देंगे जो शायद जिसके वह योग्य ना हो। According to worldly standard, they might not be worthy to be here. और शायद संसारिक रूप से वह यहाँ होना उनका लिए सही ना हो। But if you are rich in faith, you will be welcoming them and loving them. और परंतु अगर आप विश्वास में अमीर होंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे और उनसे प्रेम करेंगे। Because kingdom of God measures true wealth on basis of person's faith. क्योंकि परमेश्वर का राज्य उस सच्ची अमीरी को नापता है आपके विश्वास के ऊपर। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें And let's have a sober self-assessment this morning. और आज की सुबह अपने आप को जांचें। Because when God looks at a person, क्योंकि जब परमेश्वर एक मनुष्य को देखता है that's what he is looking for. वह इन्हीं सब बातों को ढूंढ रहा है। Faith that is working in love. विश्वास जो प्रेम से चल रहा है। Let's not get caught up with world system of wealth. हम संसार के अमीरी के उस बात को ना देखें। We are the children of God. हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। We belong to the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के लोग कहलाते हैं। We are from the different culture हम एक अलग संस्कृति से आते हैं, with different values. अलग विचार, अलग मूल के साथ आते हैं। And we need to keep ourselves impartial. और हमें अपने आप को भेदभाव रहित रखना है। Let's do this sober self-assessment before God this morning. आए हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को जांचें आज की सुबह। As Pastor Pankaj leads us in prayer, जब पास्टर पंकज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, let's focus on God and let's speak to Him. आए हम परमेश्वर पर ध्यान दें और उससे बातचीत करें।